ڈاکٹر کی ضرورت ہے। اردو سے وابستہ خواہش مند ہمارے دفتر بھارتی ڈیجیٹل واقع غلام چوراہا نزد وشوا شانتی کالج 5 تا 7 بجے شام رابطہ کریں یا کال کریں 9553521111۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی۔ پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ تمامی کا خیر مقدم ہے۔ تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے آج کی حدیث مبارکہ سے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازہ میں شریک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اس امت کو قبروں میں آزمایا جاتا ہے جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس سے جدا ہوتے ہیں تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک گرز ہوتا ہے۔ وہ اس میت کو بٹھا کر پوچھتا ہے، تم اس آدمی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اگر وہ مومن ہو تو وہ کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ سن کر فرشتہ اس سے کہتا ہے، تم نے سچ کہا۔ پھر اس میت کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور فرشتہ اسے کہتا ہے، اگر تم نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہوتا تو تمہارا یہ ٹھکانہ ہوتا، مگر اب تم مومن ہو اس لیے تمہارا ٹھکانہ یہ ہے۔ اتنے میں اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جب وہ میت ادھر کو اٹھنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ اس سے کہتا ہے، ادھر ہی سکون اختیار کرو۔ پھر اس کے لیے اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے اور اگر میت کافر یا منافق ہو تو فرشتہ اس سے پوچھتا ہے، تو اس ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، میں تو کچھ نہیں جانتا، البتہ لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنتا تھا۔ فرشتہ کہتا ہے، تو نے نہ سمجھا، نہ پڑھا، نہ ہی ہدایت پائی۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ فرشتہ اس سے کہتا ہے، اگر تو اپنے رب پر ایمان لاتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا، مگر تو نے چونکہ اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اس کے متبادل ایک اور ٹھکانہ تیار کیا ہے۔ اتنے میں اس کے لیے جہنم کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ اس کو گرز کی ایک زبردست ضرب لگاتا ہے جس کی آواز کو جنوں انس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سنتی ہے۔ یہ حدیث سن کر کچھ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، جب فرشتہ ہاتھ میں گرز لیے کر کسی آدمی کے ساتھ کھڑا ہوگا تو وہ تو حواس باختہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً یہ آیت پڑھی، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کلمہ توحید پر ثابت قدم رکھ۔ آغاز سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر۔ ضلع بھر میں سنکرانتی تہوار کی دھوم، بازاروں میں خریداروں کا ہجوم، رنگ برنگے رنگولیوں کے مقابلے، پتنگ بازیاں عروج پر، عوام میں خوب نظر آیا سنکرانتی تہوار کا جوش۔ چائنا مانجا پر امتناع آئے، سنکرانتی کے موقع پر چائنا مانجے کا استعمال، ایک بائک سوار نوجوان چائنا مانجا گلے میں پھنسنے کی وجہ شدید زخمی، دواخانے میں زیر علاج۔ امت مسلمہ بے فضولی اپنا وقت ضائع نہ کرے، اللہ سے رجوع ہو جائے اور عملی میدان میں محنت کرے۔ 19، 20 اور 21 تاریخ کو ہونے والے تبلیغی اجتماع کو کامیاب کرے۔ مولانا مفتی سعید اکبر دامت برکاتہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سنکرانتی کے تہوار میں ہر کوئی، بچے بڑے،
पतंग उड़ाते हैं और पतंगबाजी का मुकाबला करते हैं। शहर के कई इलाकों में संक्रांति त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया गया। संक्रांति के त्यौहार में हर कोई जवान, बूढ़े और बच्चे पतंग उड़ाते हैं और पतंगबाजी का मुकाबला करते हैं। बच्चे और नौजवान टूटी पतंगे लेने के लिए दौड़ते हैं। बच्चों और नौजवान का कहना था कि वो इंतजार करते हैं कि संक्रांति का त्यौहार कब आएगा या छुट्टियां कब आएंगी। उन्होंने कहा कि छुट्टियां आते ही पतंगबाजी शुरू कर देंगे। वो पतंगबाजी का मुकाबला करेंगे और खूब मजा करेंगे। गंगास्थान, कंटेश्वर, सुभाष नगर, नामदेवाड़ा, वर्नी रोड, अरसापल्ली, विनायक नगर, दुब्बा, हमलवाड़ी और तमाम गलियों में बगैर किसी फर्क के पतंगबाजी करके संक्रांति का त्यौहार शान व शौकत के साथ मनाया गया। जुमेरात बाजार में छोटे ताजरीन को फुटपाथ पर कारोबार की दोबारा इजाजत। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी पर ताजिरों का इजहार तशक्कुर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर टाउन व जिला मजलिस निजामाबाद के कायदीन ने जुमेरात बाजार में छोटे ताजरीन को म्यूनिसिपल हुकाम और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हटा देने के वाक़ये पर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए दोबारा फुटपाथ पर कारोबार की इजाजत दिलाई है। जुमेरात बाजार निजामाबाद में तरकारी फरोशी के स्टॉल्स और फ्रूट मंडियों को बर्खास्त कर देने पर मुकामी छोटे कारोबार करने वालों ने सदर मजलिस को फोन पर इत्तला देते हुए ताउन की फरियाद की थी। बैरिस्टर ओवैसी की मुकामी मजलिस कायदीन को हिदायत पर सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, सदर जिला मजलिस मोहम्मद फैयाजुद्दीन, साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, मोहतमद टाउन मजलिस व मुआविन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद, मजलिसी कॉर्पोरेटर्स अब्दुल अली बागपान, माजिद सिद्दीकी, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स एजाज हुसैन, मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल सलीम, सैयद रफीउद्दीन के अलावा अरशद पाशा, शेख खलील अहमद, अमर फारूक, अरशद खानी इन छोटे कारोबार तरकारी वालों के हमरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में एहतजाज किया और म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार से नुमाइंदगी के जरिए जुमेरात बाजार में फुटपाथ पर मार्किंग के जरिए इन बिलालिहाज मजहब व मिल्लत गरीब ताजरीन की गुजर बसर पर मुनहसिर कारोबार को दोबारा कायम कराया गया। इस मौके पर ठेला मंडियों पर फलों को फरोख्त करने वाले ताजरीन ने कहा कि गुज़िश्ता 50 साल से इस इलाके में फुटपाथ पर कारोबार किए जाते, ताहम गुज़िश्ता 15 दिनों से म्यूनिसिपल और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कारोबार को बर्खास्त करार दिया गया था, जिससे हमारी गुजर बसर मुश्किल बनी हुई थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमारा साथ देकर दोबारा उसी मुकाम पर कारोबार की इजाजत दिलाई है, जिसके लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, रुकने असम्बली मलकपेट व इंचार्ज जिला तंजीमी उमूर मजलिस के बाशमूल मुकामी मजलिसी कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। अलावासी तरकारी फरोश खवातीन ने भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताउन दोबारा कारोबार की इजाजत दिलाने पर सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर किया। निजामाबाद शहर के मसरूफ़ तरीन शहरा वीकली बाज़ार जुमेरात जो मार्केट जिसे कहते हैं, ये साल का आखिरी दिन उनके लिए एक मनहूस दिन साबित हुआ, इस वजह से कि वहाँ पर जो स्ट्रीट वेंडर्स और गरीब गुरबा लोग जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने छोटे छोटे काम करते, उनको अचानक आकर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से गैर ज़रूरी तौर पे उनको वहाँ से हटा दिया गया। बहरहाल ये चीज़ काबिल मजम्मत है, क्योंकि ये जो वीकली बाज़ार की मेन रोड है, ये पिछले में 50 साल से ज़्यादा लोग वहाँ पर उनके बाप दादा स्ट्रीट पे रोड पे बैठ के एक साइड में कारोबार करते थे। रही बात कुछ लोग बाहर से जो आके तरकारी बेच रहे, वो लोग भी आने से वहाँ जाम हो रहा, उस वजह से उनके साथ इनको भी रिमूव कर दिए। हम ये चीज़ को सख्ती से मजम्मत करते हैं। वहाँ के कुछ लोग असदुद्दीन अवैसी साहब को कॉल करके बताए, इसीलिए हम यहाँ पर आके कमिश्नर साहब से बात करें, एडिशनल कमिश्नर और ट्रैफिक वालों से भी बात करें। इंशाल्लाह मंडे इसका एक रास्ता निकालते हुए इनको वहीं बिठाया जाएगा। वीकली मार्केट में 15 दिन से तकरीबन नहीं बोले तो हम लोगों को परेशान कर दिए थे। पूरे बंडिया वालों को और दोस्तों तरकारिया वालों को सबको उठा दिए थे और इमाम की पार्टी आके हमको सपोर्ट करके फिर ये चौरस्ते पे हमको बिठाई। हम तकरीबन नहीं बोले तो हमारे बाप दादा से कारोबार यहाँ पर चल रहा फ्रूट का, आज तक कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, लेकिन ये 15 दिन से क्या है बहुत परेशान कर दिए थे हमको। हमारे घर में भूखे प्यासे एक कमाना तो 4 खाना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम में पूरे भाइयाँ मिल के हमके
हमको यहाँ पे फिर मुकाम पे बिठा दिए अल्हम्दुलिल्लाह। धरना दिए तकरीबन 12-13 दिन फिरने के बाद यहाँ पे मुकाम पे बिठा दिए हमको। हाँ, बल्दिया ट्रैफिक वाले उठा दिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है MMA वाले बिठा दिए अल्हम्दुलिल्लाह। मरकजी वजीर पीयूष गोयल और MP धर्मपुरी अरविंद ने हल्दी बोर्ड का किया इफ्तिताह, जिस पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अराकीन ने खुशी का इजहार किया। नेशनल हल्दी बोर्ड के सेक्रेटरी हिमा लता ने तकरीब में की शिरकत। ताजरों के दरपेश मसाइल को उनके इल्म में लाया गया। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने MP धर्मपुरी अरविंद की हमरा निजामाबाद के एक होटल में मुनाकिदा एक तकरीब में वर्चुअल मोड के जरिए नेशनल हल्दी बोर्ड का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अराकीन ने शिरकत की। प्रोग्राम के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ए जगदीश्वर राव ने P गंगा रेड्डी को नेशनल हल्दी बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर किया। अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण और आर्मूर MLA राकेश रेड्डी ने उन्हें मुबारकबाद दी। इसी तरह नेशनल हल्दी बोर्ड की सेक्रेटरी मिस हेमलता, जिन्होंने प्रोग्राम में शिरकत की थी, को निजामाबाद के ताजिरों के दरपेश मसाइल और सनती राहदारी की जरूरत से आगाह किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ए जगदीश्वर राव ने कहा कि उन्होंने मुस्बित जवाब दिया। इसके अलावा उन्होंने जिला निजामाबाद में सनतों की तरक्की के लिए काम करने का वादा किया। इस प्रोग्राम में सेक्रेटरी अरकान श्रीनिवास राव, मास्टर शंकर, रमेश गुप्ता दीगर भी मौजूद थे। आशीर्वाद से नेशनल टर्मरिक बोर्ड बना है। हमारे मित्र भले गंगा रेड्डी गारू इसके पहले चेयरमैन बने हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। अलग अलग देशों के प्रतिनिधि भी अब इस बोर्ड में जोड़े जाएंगे। निर्यातक, जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो प्रोड्यूसर्स हैं, इनके प्रतिनिधियों को भी इस बोर्ड में जोड़ा जाएगा। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी की एक पहचान है पूरे देश और दुनिया में, जो कहते हैं वो करते हैं। फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग टनल हो, चाहे वो देश के अन्य अन्य विभागों में अलग अलग उद्योग के उपक्रम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हो, निर्यातकों को सहायता देने की बात हो, किसानों के लिए अमूल चूल परिवर्तन करके उनकी आमदनी बढ़ाना, उनके जीवन में अच्छा भविष्य दिलवाना, चाहे स्टार्टअप की दुनिया को प्रोत्साहन देना, हर वो विषय जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कार्यक्रमों में लिया है, वो सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसी के कारण आज पूरे विश्व में भारत का बोलबाला है, भारत का परचम लहरा है। पूरा विश्व भारत के साथ संबंध नहीं बढ़ाना चाहता, भारत के साथ व्यापार ही नहीं करना चाहता, लेकिन विश्व के जिले में संक्रांति त्यौहार की तकरीब शानदार तरीके से मनाई गई। खवातीन और लड़कियों ने रंगों से रंगोली बनाए। संक्रांति त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जहां सब इकट्ठे होते हैं और खुशी खुशी त्यौहार मनाते हैं। जिले में संक्रांति की त्यौहार की तकरीबात शानदार तरीके से मनाई गई। खवातीन और लड़कियों ने सुबह सवेरे उठकर अपने घरों के सामने रंग बिरंगे रंगों के साथ रंगोली बनाई। इस मौके पर कहा कि संक्रांति त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि जो लोग बैरून मुल्क में हैं, वो भी एक जगह पर क़याम करेंगे और संक्रांति का त्यौहार खुशी से मनाएंगे। शहर में हर जगह लड़कियां अपना वक्त खुशी की तकरीबात में गुजारती हैं। खवातीन ने कहा कि वो संक्रांति का त्यौहार बेसब्री से इंतजार करती है, क्योंकि ये त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जहाँ सब इकट्ठे होते हैं। संक्रांति त्यौहार की सखावत को बढ़ाने के लिए खवातीन और लड़कियों ने खूबसूरत रंग बिरंगी पगड़ियां पहनकर सबको मुतासिर किया। नामदेववाड़ा, सुभाष नगर, कंटेश्वर, गंगास्थान, विनायक नगर, गाजुलपेट, गौतम नगर, दुब्बा, हम्मलवाड़ी, अरसापल्ली और शहर के दीगर इलाकों में संक्रांति का त्यौहार मनाया गया। కనుమ రోజు గోపూజలతో జరుపుకుంటాము। సంక్రాంతి అంటే అందరూ కుటుంబ సభ్యులు ఒకే దగ్గర చేరుకొని జరుపుకునే పండుగ। పిండి వంటలు, పతంగిలు ఎగిరేయడం, రంగోలి, పొద్దున్నే లేచి అందరూ కలిసి ముగ్గులేయడంతో అందరూ ఎంతో సంతోషంగా జరుపుకునే పండుగ। ఈ పండుగకి కుటుంబ సభ్యులు ఎక్కడున్నా, విదేశాల్లో ఉన్న, ఎక్కడున్నా పట్టణాల్లో నుండి గ్రామాలకు చేరుకొని అందరూ సొంతింటికి చేరుకొని సొంత గ్రామానికి చేరుకొని జరుపుకునే పండుగ। మరోసారి అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు। సంక్రాంతి కనుమ శుభాకాంక్షలు। సంక్రాంతి అనేది ఎంతో పెద్ద పండుగ, అందరూ ఘనంగా జరుపుకునేది। పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరూ గ్యాదర్ అయ్యి ముగ్గులు వేయడం,
బాయ్స్ అయితే కైట్స్ ఎగరవేయడం, ఇంకా పిండి వంటలు చేయడం, అందరూ గ్యాదర్ అవుతారు. సో ఈ పండుగ తెలంగాణలోను ఆంధ్రప్రదేశ్లోను చాలా పెద్ద పండుగ, గ్రాండ్గా చేస్తారు. గేమ్స్ కండక్ట్ చేస్తారు, ముగ్గుల పోటీలు అన్నీ బాగా గ్రాండ్గా చేస్తారు. ఇంట్లో ఆవులకి పూజలు చేయడం, ఇంటికి ముందుకు బస 19, 20, 21 तारीख को होने वाले तबलीगी इज्तिमा में शिरकत करें। इज्तिमा की बरकत से खैर नाजिल होता है। बेकारी कई गुनाहों को जन्म देती है। नौजवान रातों को जागना बंद करें, अल्लाह से रुजू हो और अमली मैदान में मेहनत करें और रोज़गार हासिल करने की कोशिश करें। मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब दामद बरकातहम का बयान। तो ये 2 दिन का इज्तिमा है नौजवान साथियों, ये हमारे शहर में जो इज्तिमा हो रहा है ये क्या है बोल तो अल्लाह की रहमतों को खींचने का मकनातीस है। ये इज्तिमा क्या है, हमारे समझो कि पूरे इलाकों में अमन कायम हो जाए। आज हर तरफ उम्मत मुस्लिमा मायूसी की शिकार है, दिलों में बेचैनियां भरी हुई हैं, खौफ का माहौल बढ़ रहा है, शिद्दत पसंदी बढ़ रही है। तो ऐसे दौर में, ऐसे माहौल में कि ये जो बड़े बड़े बातिल के इनकलाबात आ रहे हैं, तो ये इज्तिमात है ना मेरे भाइयों, ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह की रहमतों और बरकतों के नाजिल होने का जरिया है। आप देखते हैं कि मकनातीस लोहे को अपनी तरफ खींचता है, ऐसे ही ये दीनी इज्तिमात क्या है, अल्लाह की मदद नुसरत को खींचने वाले हैं। हमको दुआ भी करना है, अल्लाह वो जो इज्तिमा होने वाला है अल्लाह उसको कामयाब बना दीजिए, पूरी इंसानियत हिदायत पर आ जाए। हम तो क्यों हैं, हम क्या हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। हमारे नबी हर एक इंसान के लिए तड़पते थे और हमारे नबी की आरज़ू फिक्र क्या थी कि मेरा लाया हुआ दीन हर कच्चे पक्के घर में दाखिल हो जाए। तो हमारी भी यही आरज़ू होनी चाहिए जो हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरज़ू थी। हमारा ये मुल्क, हमारा ये वतन अजीज, ये प्यारा मुल्क, ये अमन का गहवारा बन जाए। हमारा ये शहर निजामाबाद, ये हिंदू मुस्लिम यकजहती का माहौल, प्यार मोहब्बत का माहौल बने, अमन कायम हो जाए, हमारा स्टेट अमन का गहवारा बन जाए, हमारा मुल्क अमन का गहवारा बन जाए। जितने मज़ाहिब के लोग हैं मिलजुल कर रहे, प्यार मोहब्बत से रहे, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक रहें। तो ये 2 दिन का जो इज्तिमा होने जा रहा है, आपसे हम यही गुजारिश करना चाहते हैं कि देखो 2 दिन मुकम्मल आप वक्त फारिग करके इज्तिमा में तशरीफ लाइए, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। इंसान का जो दिल है ना, इंसान का जो दिल, उसकी मिसाल कैसी लिखे मालूम, स्पंज की तरह है हमारा दिल। आप स्पंज को जिस चीज में डालो उस चीज को वो जज्ब करता, पानी में डालो तो पानी को जज्ब करेगा, दूध में डालो तो दूध को जज्ब करेगा, तेल में डालो तो तेल को जज्ब करेगा। आप जब भी निचोड़ेंगे अंदर से वही चीज निकलती है जो स्पंज के अंदर जज्ब हो चुकी है। तो ऐसे ही मेरे भाइयों, हम लोग अगर समझो कि नेकी के माहौल में रहेंगे, तकवे के माहौल में रहेंगे, तो हमारे दिल में नेकी तकवे के असरात आएंगे। और अगर हम बुरे माहौल में रहेंगे, गफलत के माहौल में रहेंगे, तो हमारा दिल वहां के असरात को भी कैच करेगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये जो 2 दिन का इज्तिमा है, ये इज्तिमा इसीलिए है कि हमारे अंदर से गफलत निकल जाए, हमारे अंदर भी अल्लाह को राजी करने का जज्बा आ जाए, हमारे अंदर भी इंसानों के साथ हमदर्दी खैर खाई का जज्बा आ जाए, हमारे अंदर भी, हम जवान हैं तो हमारा काम क्या है, खिदमत, माँ बाप की खिदमत। हम बेरोजगार हैं तो ये बेकारी है ना, ये बहुत बड़ा ऐप है। अरबी का एक मकौला, अल-बितालतु उम्मुल उयूब, बेकारी तमाम बुराइयों की जड़ है। अपने अंदर बेकारी नहीं, हलाल कमाने की फिक्र थी। जवानी के अंदर ये फिक्र हर एक को ना, हर साथी को, जो लोग कारोबार से जुड़े हुए, बिजनेस कर रहे, जॉब कर रहे, दूसरे भाइयों को तरगीब दिलाना कि भाई ये रातों में जागना मुनासिब नहीं है। मेरे भाइयों, हम मामूली बात समझ रहे, अल्लाह ताला इसके बारे में सवाल करने वाले हैं। ये तय कर लें कि हम अपना वक्त जाया नहीं करेंगे।
زائرین حرمین میں موبائل سے تصویر بنانے میں وقت ضائع نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت الہی میں گزاریں. حرم انتظامیہ کا پیغام. ادارہ حرمین کے شعبہ امور دینہ کی جانب سے زائر مرد و خواتین کو پیغام دیا ہے کہ وہ حرمین میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت الہی میں گزاریں، دروس قرآن کی حلقوں سے استفادہ کریں، اپنے وقت کو موبائل کی تصویر بنانے میں ضائع نہ کریں. ادارہ حرمین نے دنیا بھر سے آنے والی زائر مرد و خواتین کے نام اپنے خصوصی پیغام میں کہا حرمین کے تقدس کا خیال رکھیں، مسجد الحرم اور مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں میسر آنے والے لمحات کو غنیمت جانیں اور قرآن کریم کی تلاوت و نوافل کثرت سے ادا کریں. مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں مختلف زبانوں میں دروس قرآن کے خصوصی حلقے ہوتے ہیں جن سے استفادہ کریں تاکہ اسلام کی اصل تعلیمات سے درست طور پر آگاہ ہو سکے. پیغام میں زائرین کو مخاطب کرتے ہوئے مزید کہا گیا کہ عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ دنیا کے مقدس ترین مقام پر ہیں. یہاں آپ کی موجودگی بہت اہم ہے، اس لیے اس مقدس مقام کے تقدس کا خاص خیال رکھیں. طواف وسعی کے دوران اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ازدحام والے مقام پر نہ جائیں، خاص کر مسجد الحرم سے باہر نکلنے کے دوران ازدحام سے گریز کریں. زیادہ وقت دعا میں صرف کریں. اگر کسی دینی مسئلے میں الجھن کا شکار ہے تو حرمین میں موجود رہنما مرکز سے رجوع کریں اور انہیں اپنا مسئلہ بتائیں جہاں آپ کی درست رہنمائی کی جائے گی. چائنا مانجا خطرناک مانجا. ٹاسک فورس پولیس کی تنخی، جرمانے و اقدامات کے باوجود بھی تاجرین کر رہے چائنا مانجے کی فروخت. یہی چائنا مانجا ایک بائک سوار نوجوان کے گلے میں پھنسنے کی وجہ نوجوان شدید زخمی، دواخانے میں زیر علاج. نوی پیٹ کے سبھاش نگر کالونی میں چائنا مانجے کے ذریعے ایک نوجوان کا گلا کاٹنے کا واقعہ پیش آیا. 18 سالہ عدنان مقامی ویلڈنگ کی دکان پر کام کرتا ہے. چائنا مانجے کی وجہ سے نوجوان کا گلا، پیر اور ہاتھ کٹ گیا، جو روزانہ صبح باسر روڈ پر 2 ویلر گاڑی پر سوار گھر سے دکان جاتا تھا. بعد ازاں نوجوان گاڑی سے نیچے گر گیا. مقامی عوام نے شدید زخمی نوجوان کو علاج کے لیے نوی پیٹ کے سرکاری اسپتال منتقل کیا. لواحقین نے راحت کی سانس لی کیونکہ علاج کرنے والے ڈاکٹروں نے کہا کہ کوئی خطرہ نہیں. نوجوان جس موٹر سائیکل پر سوار تھا اس کی رفتار تیز نہ ہونے کی وجہ سے بڑا حادثہ ٹل گیا. نوجوان کو تقریباً 5 سے 8 ٹانکے لگے. اگرچہ پولیس نے دکانداروں کو چائنا مانجا فروخت نہ کرنے کی تنبیہ کی، لیکن پھر بھی دکاندار چائنا مانجا فروخت کرے. مقامی عوام کا مطالبہ ہے کہ پولیس دکانداروں کے خلاف مناسب کارروائی کرے. جونیئر چیمبر انٹرنیشنل اندور اور JCI کلب کی قیادت میں سنکرانتی تہوار کا انعقاد. بچوں میں پتنگوں کی تقسیم، خواتین کے لیے رنگولیوں کا انعقاد و انعامات کی تقسیم. نظام آباد شہر کے اندرا پور میں جونیئر چیمبر انٹرنیشنل اندور اور JCI ایلومنائی کلب نے سنکرانتی کی تقریبات کا اہتمام کیا. اس موقع پر بچوں میں پتنگیں تقسیم کی گئی، خواتین کے لیے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا اور انعامات تقسیم کیے گئے. اس موقع پر JCI اندور صدر پی گوتمی نے کہا کہ JCI کے زیر اہتمام ہر سال سنکرانتی کے موقع پر خدمت پروگرام کے ساتھ پتنگیں بھی تقسیم کی جائیں گی. اندرا پور میں خواتین نے جوش و خروش سے رنگولی مقابلوں میں حصہ لیا. اس پروگرام میں JCI اندور سیکرٹری جے پال، پروگرام چیئرمین کے سرینیواس، زون آفیسر JC نائب صدر، دیگر قائدین موجود تھے. اختتام سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر. ضلع بھر میں سنکرانتی تہوار کی دھوم، بازاروں میں خریداروں کا ہجوم، رنگ برنگے رنگولیوں کے مقابلے، پتنگ بازیاں عروج پر. عوام میں خوب نظر آیا سنکرانتی تہوار کا جوش. چائنا مانجا پر امتناع آئے. سنکرانتی کے موقع پر چائنا مانجے کا استعمال. ایک بائک سوار نوجوان چائنا مانجا گلے میں پھنسنے کی وجہ شدید زخمی، دواخانے میں زیر علاج. امت مسلمہ بے فضولی اپنا وقت ضائع نہ کرے، اللہ سے رجوع ہو جائے اور عملی میدان میں محنت کرے. 19، 20
और 21 तारीख को होने वाले तबलीगी इज्तिमा को कामयाब करे। मौलाना मुफ्ती सईद अकबर दामद बरकातहू। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।